Welcome to today's podcast. I am your host Prachi Goyal. Joining me is my co-host and host Vaibhav Kulkarni. Today, with utmost pleasure, we would like to welcome our guest Manish Tiwari sir. With over 23 years of experience, sir has made some remarkable footprints in the fields of sales, career development, and startup growth. He is known for his expertise in solutions, sales skills, and mindset building. As the founder of Growth with Manish, he has been helping professionals unlock their full potential in sales and career growth through the digital first ecosystem. He also plays a significant role as a senior mentor at Pivot, a platform that aids a professional in career transition, and as an executive coach at VAs, empowering women professionals. Sir's achievement include building the North India business of an MNC training company to the four times its original revenue and leading the business growth of two of the India's largest staffing firm. His story is not just about professional success, but also about personal transformation and continuous learning. Please join me in welcoming Manish sir to our podcast. Welcome, sir. Hi, great to be here, Prachi and Vaibhav. Excited to talk to you and through you to the large audience that will be listening to this. Thank you, sir. Uh, sir, just to start off, I guess it's always better to start from the root and the ground. So, basically, where are you from? Because I think we have saw your reels. We like to engage with them. It's very informative. We get a lot of value out of it. But maybe we don't know that backstory of you, like starting with where you came from, then your entire journey. So, let's get started with that. Sure. Yeah, as you said, always good to start from the start. My origin, my journey begins from Bihar. I'm a native of Bihar state, born and brought up in Patna. And I belong to a middle class family. I will say a very well educated middle class family. My father is a teacher, professor. My mother is also fairly well educated. So I was born and brought up there. मेरी schooling वहीं से हुई पटना से and graduation भी मैंने बिहार में किया. And after that I moved out and I did my MBA from GIM, Goa Institute of Management, और वहाँ से फिर आगे आगे का सफर शुरू हुआ. Great. Sir, I would like to mention कि मैं भी पटना से हूँ, so my Oh. mother is from Patna, and that's how I can we are basically neighbors from there. एक चीज है जो बिहारी लोगों के बारे में मैं जानता हूँ इज दैट दे हैव नो मतलब उनके पास में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी नहीं होती. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो एनीवेज या so then you like what about the graduation part? So like basic studies और ये कैसा था, मतलब क्या stream में था and then like yeah. Sure. तो फर्स्टली अगेन ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है. हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले ही 12th के और 10th के रिजल्ट्स आए हैं. एंड काफी परसेंटेज एंड उस पर बहुत है. तो मे बी इट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू से. आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट. आई वॉज नेवर अ टॉपर. ऐसा नहीं कि क्लास टॉपर हो, बोर्ड टॉपर हो, वैसा कुछ नहीं था. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट आई वुड से, बट नॉट द टॉपर. तो मे बी एक इम्पॉर्टेंट चीज की 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, ये सब ठीक है, इम्पोर्टेंट है एक हद तक. बट लाइफ में बहुत कुछ है इससे आगे. सो लेट्स से पीपल हैव नॉट गॉट वेरी गुड मार्क्स एंड ऑल, ऑनेस्टली डज नॉट मैटर. मेरे अगर अपने बैच में मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था अपने बोर्ड्स में या 12th में, बट दे हैव डन वेरी वेल. Right. सो वो है. आई डिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस. तो this was also, you have to understand, I know Prachi, you and Vaibhav belong to a different generation, but I was there in the 90s in Bihar, and typically the way it is, बहुत stability और security के हिसाब से वो society चलती है. And so science पढ़ना है, science was the thing. Science करो, उसके बाद maybe look for a government job used to be the thing. So I basically did science. साइंस में मैंने फिजिक्स में किया ग्रेजुएशन. एंड देन चीजें शिफ्ट हुई बिकॉज फिर आई डिड नॉट टुक द टिपिकल रूट विथ अ लॉट ऑफ पीपल इन बिहार टेक. Great.
एंड देन फिर आई गेस यू आर अभी आप जो है दिल्ली में हो आई गेस राइट, सो Yes. यू हैव बीन ऑलवेज इन दिल्ली या मतलब पहले कोई और पटना में थे एंड देन लाइक यू देन शिफ्टेड टू दिल्ली, लाइक व्हाट इज योर अर्ली करियर जॉब एंड देन दैट स्टफ? नहीं, तो Patna remains my hometown. I have a house out Okay. there, and but as I said, एक बार जब बाहर निकल गए, when I did my MBA, I worked across the country. तो पूरे पूरे भारत में मैंने काम किया है, except I think eastern part of India. So I worked in Hyderabad, Chennai, I worked in Gujarat, worked in Mumbai, and उसके बाद I worked in Delhi. So दिल्ली में past करीब 12 सालों से मैं रह रहा हूँ, और यहाँ पर obviously now I am settled here. But my roots remain there, so that way I have an India exposure, I can say. तो सर इट्स बीन 23 इयर्स, आप मतलब 23 इयर्स से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एंड देन यू आर डेडिकेटेड स्पेशली विद द सेल्स टीम, द अदर टीम. तो कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुआ, लाइक फ्रॉम विच कंपनी यू स्टार्टेड एंड वहां से आपको लगा कि हाँ अब धीरे धीरे हाउ यू मूव टू दिस लेवल? Okay, very interesting, Prachi, and maybe this would be a interesting insight. पहली चीज, I now work, as you know, all of you know, I work as a sales coach, sales trainer, sales expert. यही मेरी आइडेंटिटी है आज. बट 23 साल 24 साल पहले जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी, तो मुझे ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं ऐसा थॉट थ्रू डिसीजन नहीं था सेल्स में आने का. मेरी नॉर्मल पर्सनैलिटी इज नॉट द टिपिकल सेल्स पर्सनैलिटी. तो आई एम नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. आई हैव नेवर बीन रियली समबडी जो पब्लिक स्पीकिंग बहुत कर रहा हो. स्कूल कॉलेजेस में कभी मैंने इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं किया है. तो मेरे लिए आफ्टर माय एमबीए, फुल टाइम एमबीए, सेल्स वाज नॉट द नेचुरल जॉब. बट दिस वाज 99 2000. और कोई जॉब ज्यादा थी नहीं. टेक में थी, और टेक में मेरा, क्योंकि आई वाज नॉट एन इंजीनियर, तो देयर वाज ऑलवेज अ डीमेरिट है कि आप इंजीनियर नहीं है तो टेक में जाना मुश्किल था उस समय. सो द ओनली जॉब आई कुड गेट वाज सेल्स. तो इस तरह से आई एक्चुअली गॉट इनटू सेल्स, एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद अ स्मॉल कंपनी कॉल्ड नोमस सिस्टम्स इन हैदराबाद. ये मेरी पहली जॉब थी सेल्स एग्जीक्यूटिव की, एंड आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू अर्न 5000 रुपीज. तो 5000 रुपए 1999 में मेरी पहली तनख्वाह हाथ में कट के 4500 रुपए कुछ आते थे. That is where the journey started. Then sir, आपका जो सेकंड, आई थिंक सेकंड, और आई डोंट नो एग्जैक्टली इज इट अ सेकंड, बट आई थिंक आपने एक ट्रांजिशन लिया था जीटीएल लिमिटेड में, और देन आई थिंक इट वाज अ बिग कंपनी राइट, जीटीएल लिमिटेड शायद. Yes. तो yes. वो ट्रांजिशन कैसे था? बिकॉज वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी एंड देन वर्किंग इन अ बिग कंपनी इज लाइक, आई गेस देयर इज अ डिफरेंस की कल्चरल डिफरेंस है, काम का लोड शायद डिफरेंट हो सकता है, एंड देन No, absolutely. So I started with a couple of small companies. तो शुरू में पहली 2 कंपनियां काफी छोटी थी, बट फायदा ये था ये स्टार्टअप्स थी. तो आई ऑलवेज बिलीव व्हेन यू जॉइन स्टार्टअप एट अ अर्ली स्टेज, आप बहुत सीखते हो. इसलिए मैं काफी लोगों को ये कहता हूँ कि अगर यंग क्राउड है, आपको अच्छे स्टार्टअप में मौका मिल रहा है शुरू में, तो यू शुड ज्वाइन. बिकॉज वहां तो मुझे काफी सीखने को मिला अपनी पहली 2 जॉब्स के अंदर. पैसे ज्यादा नहीं थे, बट सीखने को ज्यादा मिला. एंड द वे आई लुक एट इट इज, शुरू में आप सीखो, पैसे बन जाएंगे. पैसे तो आ जाते हैं, पैसे फिर नॉलेज के आते हैं. तो मेरा यही स्ट्रेटेजी थी, और मैंने वो किया. फिर मैं जीटीएल काफी बड़ी कंपनी है, ग्लोबल टेली सिस्टम्स, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मुंबई बेस्ड है. आई वाज बेस्ड इन हैदराबाद. तो उनके साथ मेरे 3 साल मैंने काम किए. बड़ी कंपनी में फायदा ये हुआ कि स्ट्रक्चर मिला, काफी सिस्टम्स थे उनके पास, स्केल था. तो आप स्केल और सिस्टम्स के साथ काम करते हो. बहुत अच्छे मेंटर्स मिले मुझे, सीनियर बॉसेस थे मेरे साथ जो गाइड करते थे. तो मैंने, अगर मैं बोलूं कि हार्डकोर सेलिंग, जो एक एंटरप्राइज सेल्स और सोल्यूशन सेल्स, जीटीएल में सीखना शुरू किया. और जीटीएल में मैंने ट्रेनिंग्स भी की. तो एक चीज मेरे करियर में हमेशा रही है कि मैंने खुद को हमेशा अपस्किल किया है. तो जीटीएल में मैंने पहली बार सेल्स ट्रेनिंग्स ली, मतलब मैं एज अ पार्टिसिपेंट गया और मैंने सीखा. और मैं ये ट्रेंड मैंने पूरे अपने करियर में किया कि मैंने हमेशा हर कुछ सालों के अंदर कोर्सेज किए, सीखे. तो वो शुरुआत जीटीएल से हुई मेरी. तो और उसी में फिर मैं हैदराबाद और गुजरात और दिल्ली, इन सब जगहों पर मैंने काम किया. तो डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो मुझे लगता है जब आप छोटी से बड़ी में ट्रांजिशन करते हैं तो बड़े के फायदे हैं और छोटे के अपने फायदे हैं. बेस्ट है कि आप दोनों को बेस्ट यूज करें.
तो अगेन मैं काफी लोगों से सुनता हूँ बिकॉज इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में काफी यंग लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो कुछ लोग का सर स्टार्टअप ज्वाइन करें या मल्टीनेशनल ज्वाइन करें। मेरा ये पॉइंट है कि आप कुछ भी ज्वाइन करो, आप सीखने के लिए ज्वाइन करो और ग्रोथ करने के लिए करो, बिकॉज हर हर के एडवांटेज है, और अगर आप वो लोगे तो आपका करियर में यू विल ग्रो वेरी फास्ट। सो सर मैंने कहीं पे देखा है कि आपने मेंशन भी किया है अपने इंस्टाग्राम में शायद कि आप काफी शाय एंड इंट्रोवर्ट थे, राइट? एंड फॉर अ पर्सन लाइक शाय एंड इंट्रोवर्ट कमिंग टू अ सेल्स इज अ बिग चैलेंज। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से आप बता रहे हो कि इस दोनों कंपनी में आपने काफी कुछ सीखा, राइट? सो वो लर्निंग फेज में क्या सीखा, कैन आई नो? क्योंकि मैं भी सेल्स से हूँ एंड I actually know when I've seen some of the folks with me जो कि actually shy introvert थे, उनको काफी challenge आया था कि like where they can actually pitch to the customer. So what was that learning phase जो कि हमारे audience को भी helpful हो कि हाँ ठीक है, this is something what they can opt in their sales career. नो डेफिनेटली प्राची, आई थिंक गुड पॉइंट। आई थिंक मेरे भी दो फेजेस रहे हैं आई वुड से इन सेल्स। पहला वो, और जब मैंने शुरू किया था, आई एम श्योर आप लोग भी शायद एग्री करेंगे, सेल्स की एक इमेज है मार्केट में। सेल्स को अगर आप लेते हैं तो सेल्स मतलब बहुत एग्रेसिव, रेडी टू सेल, इन द फेस, टॉकेटिव, लाइफ ऑफ द पार्टी, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन हम लोग लेकर चलते हैं। और मैं भी जब सेल्स में आया था तो मेरा भी यही थॉट था। तो ऑनेस्टली मेरे पहले 1.5 साल बहुत अच्छे नहीं हुए थे सेल्स के अंदर, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं काफी ट्राई कर रहा हूँ हार्ड, और मेरा नेचुरल स्टाइल वो था नहीं। आई थिंक जो ट्रांजिशन में मैंने सीखा, और आई थिंक ये सबसे बड़ी मेरी लर्निंग है, जो आज मैं हमेशा जब मौका मिलता है मैं हमेशा नए लोगों को ये कहता हूँ कि जब मैं आगे गया तो मैंने समझ आया कि एक्चुअल जो सेल्स है, खासकर जो इंटरप्राइज सेल्स है और सोल्यूशन सेल्स है, जो हाई टिकट सेलिंग है, वहां पर you don't need, first of all, you don't need to talk much. You need to listen. You need to connect to the client better. And you need to understand कि रियल में नीड क्या है, और आपको काफी थरो होना पड़ता है। तो जस्ट बिकॉज यू कैन टॉक वेरी वेल एंड डू अ गुड प्रेजेंटेशन, वो ठीक है, बट वो आपको बहुत आगे केवल सेल्स में नहीं ले जाएगा अगर आप कस्टमर्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और ये लर्निंग मेरी 3-4 सालों में हुई। और जब मुझे वो समझ आया कि एक्चुअल सेल्स इज मोर अबाउट लिसनिंग, बिल्डिंग बॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग नीड एंड एक्चुअली पिचिंग अ सॉल्यूशन, नॉट कि मेरा ये प्रोडक्ट है और आप ये ले लो। इसके बजाय उनकी नीड समझो और उसके बाद अपना सोल्यूशन दो। तो वो एक बड़ा शिफ्ट था। और मुझे लगता है प्राची, टू आंसर योर क्वेश्चन, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो थोड़े से कम बोलते हैं या हल्के शाई होते हैं, उनको ये इस केस में थोड़ी एडवांटेज भी होती है, बिकॉज वो फर्स्ट नहीं लेते, वो सुनते हैं। तो Yeah. तो वो सीखते हैं, सुनते हैं, तो वो उनको एज ए स्ट्रेंथ यूज करनी चाहिए। और इफ दे यूज दैट स्ट्रेंथ, दे विल डू वेरी वेल इन एटलीस्ट अ सॉल्यूशन सेल्स और अ हाई टिकट सेलिंग एनवायरनमेंट। But about the small tickets also, sir, what I have realized is, I have always been in edtech industry, and even when you are interacting with the parents, काफी बार ये important हो जाता है कि उनके साथ bond बना लो, emotional talks if you do, actually you will be able to understand them, and then उसके बाद फिर उनके बच्चे के लिए आप कुछ दे रहे हो। जो चीज आई बिलीव, अगर आप बोले कि एग्रेसिव सेल, वहां पे आई गेस बाइजूस ने किया हुआ है, राइट? बट समहाउ दे हैव फेल्ड, राइट, इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। कुछ टाइम तक वो चलेगा, लेकिन आगे लॉन्ग प्रोसेस के लिए वो सही नहीं चलेगा। सो डोंट यू थिंक कि ये प्रोसेस जो आपने बोला, लिसनिंग स्किल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ सेल्स? एब्सोल्युटली, लिसनिंग स्किल्स तो मुझे लगता है सेल्स ही क्या, मैं तो आजकल मैं लीडरशिप वर्कशॉप्स भी लेता हूँ, एंड आई टेल देम एज ए लीडर, आप सेल्स को अगर साइड में भी रखें तो लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप लिसन नहीं करते लोग, और सबसे अच्छा बॉन्ड सुनने से बनता है, बोलने से नहीं बनता, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो एब्सोल्युटली सेलिंग में लिसनिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग ए बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट। और मे बी आई लाइक टू पॉइंट आउट टू वन शिफ्ट दैट आई हैव सीन, वैभव एंड प्राची। पहले शायद इसकी इंपॉर्टेंस पहले भी थी, आज भी है, पहले थोड़ी कम थी बिकॉज इंफॉर्मेशन कम था। तो अगर मैं जा करके लोगों को बताऊं कि सर मेरा ये है, ये प्रोडक्ट है, तो लोग सुनते थे, बिकॉज लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। आज हम जिस दुनिया में हैं और आज हम जिस तरह की सेलिंग कर रहे हैं, एवरीबडी नोज एवरीथिंग। गूगल, इंटरनेट, एआई, कहीं भी जाकर के अगर आप किसी क्लाइंट से बात करें, जो कोई क्लाइंट छोटे टिकट के लिए भी आता है तो वो अपना रिसर्च करके आता है, उसको इंस्टाग्राम से कहीं से कुछ तो पता है,
वो बिल्कुल अननोन नहीं है। तो द क्लाइंट इज नॉट, आपको क्लाइंट को इंफॉर्मेशन देनी कम है, उसकी चीजें समझनी ज्यादा है, बिकॉज जनरल इंफॉर्मेशन के लिए अब वो टाइम नहीं है। और इसीलिए उस तरह के लोग अब सेलिंग उतनी अच्छी नहीं कर सकते अगर वो अपने को बिल्ड नहीं करेंगे। अपनी ये जो लिसनिंग स्किल्स है, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है, बॉन्डिंग स्किल्स है, वो अगर नहीं बिल्ड करेंगे तो दे कैन नॉट सेल नाउ एंड इन फ्यूचर। राइट। सो रिसेंटली मैं कुछ अच्छे फाउंडर्स के साथ काम कर रहा हूँ, और वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव रियलाइज ओवर द दिस वर्किंग विद देम इज कि इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। इवन आप एड चला के बेच रहे हो, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आप पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू बेच रहे हो, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म फनल में जा रहे हो, आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। सो या आई गेस दिस इज ऑल आर मीडियम, राइट? एंड देन वी आर जस्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग इज द एट मोस्ट ऑफ एवरीथिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। परफेक्ट। एंड देन सर, आपका जो आगे का जर्नी था, जहाँ पे आपने आई थिंक थोड़ा सा आई कैन से मोर डाइवर्जन टू अ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपने टीम लीज में, एपटेक में और एड एक्स्ट्रा कंसल्टिंग फोकस में भी काम किया है। Yes. सो एक जनरल लोगों का परसेप्शन है, आई डोंट नो लाइक आपका सेम हो अलग हो, आई डोंट नो लाइक, बट इन जनरल लोगों को ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरा डिफरेंट है, थोड़ा सा मे बी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन शायद होता है कई कई कंपनीज में। सो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि सेल्स में शायद सबसे ज्यादा होता है ऐसा कहा जाता है। सो कंसिडरिंग दैट। नो, नाइस क्वेश्चन। स्पेशली आजकल आजकल जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक बैकलैश है कॉर्पोरेट कल्चर एंड टॉक्सिक कल्चर, और बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं आज। मे बी इट्स गुड दैट यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। आई हैव स्पेंट मोर देन 2 decades इन कॉर्पोरेट एंड छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल, स्टार्टअप्स, हर जगह मैंने काम किया है। एंड आई कैन से, आई थिंक विद अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, कि पेंटिंग एन एंटायर सेक्टर की कॉर्पोरेट में एक्सप्लॉयटेशन है, या वो मुझे लगता है सही नहीं। हर सेक्टर के अंदर कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, हर सेक्टर के अंदर कुछ अच्छी कंपनियां हैं, कुछ नहीं। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कही गई है बिकॉज ऑफ सर्टेन कंपनीज, एंड सर्टेन कंपनीज ने जिस तरह से एम्प्लॉयज को ट्रीट किया है उसके कारण ये बातें ज्यादा होती हैं। बट देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज, इनफैक्ट आई हैव बीन लकी, आई वुड से आई वर्क इन मेनी कंपनीज, आई गॉट गुड बॉसेस, गुड कल्चर। हाँ, हर जगह हमेशा बहुत अच्छा कल्चर जरूरी नहीं है, बट आई लुक एट इट डिफरेंटली। मुझे लगता है अगर आप अपनी बिजनेस रन कर रहे हैं तो भी आपको हर तरह के क्लाइंट मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे, सब अच्छे तो नहीं मिलेंगे आपको। एंड इन कॉर्पोरेट्स यू लर्न टू अडेप्ट, you don't choose your boss, you learn to adapt to the system and still retain your identity। और ये बहुत बड़ी चीज है जो आप कॉर्पोरेट में सीखते हैं। इन कॉर्पोरेट्स यू ऑल्सो लर्न टू वर्क अंडर अ सिस्टम, एक डिजाइन सिस्टम है, आपको उसके अंदर काम करना होता है, फिर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना पड़ता है। यू आर नॉट अ सोलो प्लेयर ऑलवेज, राइट? तो आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आता है, आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट सीखनी पड़ती है, आपको अपने बॉसेस को मैनेज करना होता है, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज करना होता है, तो वो आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस हैं मुझे लगता है। तो इसलिए मैं तो काफी लोगों को कहता हूं कि मेरा अपना व्यू है, कुछ लोग शायद इसको नहीं मानेंगे, कि हर इंसान को 5 साल, 7 साल, 8 साल कुछ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, बिकॉज यू लर्न अ लॉट। एंड उसके बाद अगर आप अपना कुछ करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स। सर, एज आपने ये चीज मेंशन किया, आई जस्ट हैड अ थॉट कि काफी आजकल यूथ में ये चीज है कि वो डायरेक्टली एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, राइट? डायरेक्टली बन रहे हैं कॉर्पोरेट Yes. लाइफ, दे आर नॉट Yes. हैविंग दैट कॉर्पोरेट लाइफ। एंड जिस तरह से आपने मेंशन किया कि लेट्स से कि अगर कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ टाइम रहने के बाद फिर अगर वो सीएक्सओ लेवल या हायर लेवल पे आते हैं, तो द मैनेजिंग स्टाइल, द लीडरशिप स्टाइल व्हाट दे विल बी फॉलोइंग, विल दैट बी मच बेटर? क्योंकि क्या होता है कि आजकल यूथ में जो एंटरप्रेन्योर्स बन जा रहे हैं, उसके बाद इन केस कि उनका बिजनेस नहीं चला, उसके बाद व्हेन दे मूव टू द कॉर्पोरेट रोल, देन दे फाइंड अ लॉट ऑफ चैलेंज कि किसी के अंडर अब मुझे काम करना है। सो डू यू थिंक कि मतलब जैसे आपने सजेस्ट किया कि हाँ ये चीज होना चाहिए सबके लाइफ पे, तो दैट इज समथिंग विच इज मिसिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट लाइफ खराब है, जितना चल रहा है उस तरह से ये चीज मिस हो रहा है इसलिए? Yeah, definitely. So first of all, again, I'm not being prescriptive.
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर कॉलेज विदाउट अ कॉर्पोरेट। और आई थिंक दुनिया में बहुत एग्जांपल है, मार्क जकरबर्ग और ये सब एग्जांपल हैं जिन्होंने बिना कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। तो कुछ गलत नहीं है, बट जो पॉइंट आपने कहा, और मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना चाहता हूँ, नाउ दैट आई एम ऑन द अदर साइड ऑल्सो। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट जब कोई सोलो शुरू कर देता है तो शुरू में तो ठीक है, फ्रीडम रहती है, दे लाइक इट। बट जैसे अगर आप एक सोलो पर्सन से थोड़े से बड़े होते हो और आपको अपनी टीम हायर करनी होती है, एज ए इवन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आपको एक टीम बनानी पड़ती है, तो उन लोगों को वहां से चैलेंज आने शुरू होते हैं। उन्होंने कभी टीम मैनेज नहीं की है, वो खुद कभी टीम के अंदर काम नहीं किए हैं। तो मतलब मैं इतने काफी लोगों को जानता हूँ, सोलो लोग जो 22 साल 25 साल के हैं, जिन्होंने कभी कॉर्पोरेट में काम नहीं किया है, अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, लेकिन अब स्केल करने के लिए उनको हायरिंग करनी है, उनको हायरिंग करना नहीं आता। उन्होंने कभी जेडी बनाया नहीं है, उन्होंने कभी इंटरव्यू प्रोसेस देखा नहीं है, उन्होंने किसी बॉस के अंडर, अब वो बॉस है, उन्होंने खुद किसी बॉस के अंडर काम नहीं किया है, तो उनको पता नहीं है कि अपनी टीम को कैसे मैनेज करें। और फिर उनको समझ नहीं आता कि हम कैसे करें, तो वो फिर बर्न आउट होने लगते हैं, फिर उनको लगता है नहीं हम सोलो ही अच्छे हैं। और फिर अगर वैसे ही लोग कॉर्पोरेट में जाते हैं, राइटली प्राची, अगर वो उनका नहीं चलता हो कॉर्पोरेट में जाते हैं, तो उनको क्योंकि इतनी आदत है अपने ढंग से रहने की, कॉर्पोरेट्स के अंदर आपको एक सिस्टम और स्ट्रक्चर के अंदर काम करना पड़ता है, तो उनको बहुत दिक्कत होती है एडजस्टमेंट्स करने के अंदर। सो आई वुड से कि ये चीजें सोचनी चाहिए आज लोगों को, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस इज अ वेरी लॉन्ग गेम। ये फन नहीं है। और ये एक दो दिन का फन नहीं है। अगर आपको कुछ बड़ा बिल्ड करना है तो आपको 5 साल 10 साल के सोचना पड़ेगा। आप अकेले नहीं बिल्ड कर, आप शुरू में स्टार्ट अकेले कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ टीम आएगी, फ्रीलांसर्स आएंगे, अलग लोग आएंगे, रिमोट वर्क के लोग आएंगे। आप कैसे मैनेज करोगे लोगों को? आपने तो कभी मैनेज ही नहीं किया है, आपको किसी ने मैनेज ही नहीं किया है, तो हाउ विल यू नो? और ये किताबों से नहीं आप पढ़ सकते हैं, ये आपको लाइफ से, एक्सपीरियंस से करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मेरे लिए यही सबसे बड़ा एडवांटेज कि मैंने क्योंकि इतने साल काम किया है, तो आज मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि मेरी जो टीम है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, वो करीब करीब मेरी आधी उम्र के लोग हैं, और 4 लोग हैं और 4 शहरों में। और मैं बहुत आराम से उनके साथ काम करता हूँ, और वो मुझे कहते हैं कि सर आप हमारे सबसे अच्छे क्लाइंट हैं, बिकॉज दूसरे क्लाइंट्स के साथ हमारी बनती ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या है। एंड मे बी इट इज बिकॉज मैंने पैन इंडिया टीम्स मैनेज की हैं पहले एंड इन माई कॉर्पोरेट करियर, तो आज मैं एक फ्रीलांसर्स की टीम भी मैनेज कर पा रहा हूँ। सो दैट इज द पॉइंट। what I understand. सॉरी प्राची, एक हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट सर ऐसा आपको लगता है क्या कि थोड़ा पेशेंस भी आ जाता है? आई थिंक थोड़ा सा, क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ बहुत सारे फाउंडर्स जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं बहुत स्कोल्ड करते हैं, उनको बहुत डांटते हैं अननेसेसरी, और उनका फिर मोटिवेशन नहीं रहता बेसिकली, मैं क्यों काम करूँ फिर इस कंपनी के लिए, काइंड ऑफ ऐसा कल्चर हो जाता है थोड़ा सा टॉक्सिक। नो नो एब्सोल्युटली, मतलब स्पेशली अगर आप सेल्स की बात करें, आई रिमेंबर इन सम ऑफ माय अर्ली करियर डेज, हमारे रिव्यू मीटिंग्स होती थी सेल्स में, कभी कभी 11 बजे रात तक होती थी, 12 बजे रात को होती थी, और फिर सुबह 6 बजे बुलाया जाता था। तो जब आप इस लाइफ से रहते हो अब, तो आपको पता है कि थोड़ा हार्ड वर्क होता है, स्ट्रेच होता है, करना पड़ता है आप, और हमेशा चीजें आपके तरह से नहीं जाती, यू हैव टू टेक सम बैक स्टेप्स ऑल्सो। तो एज यू राइटली सेड, तो आप जब खुद ये करके आते हो, और फिर अगर आप किसी टीम को मैनेज करते हो एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, तो आप ज्यादा समझते हो, आप उनकी चीजें भी समझते हो, बिकॉज आपने भी ये देखा है। और अगर आप कभी कुछ मैनेज नहीं कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आप मैनेज कर रहे हो, तो आपका पेशेंस लेवल कम होगा। और ये जो आजकल हम देख रहे हैं, बहुत से फाउंडर्स का भी हम देख रहे हैं कि उनके बारे में आ रहा है, और पैसे सडनली आ गए हैं, मैनेज कभी किया नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं, एंड एवरीबडी वांट्स क्विक मनी। वो मुझे लगता है ये जो इंटायर इवन तो स्टार्टअप्स के अंदर तो थोड़ा टॉक्सिसिटी आ गई है, वो उसका रीजन ये भी है। राइट। बेसिकली ये लाइफ आपके लीडरशिप स्टाइल को एनहांस करती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड आफ्टर योर इनसाइट्स, कि एक्चुअली इस कॉर्पोरेट लाइफ के थ्रू अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली योर स्किल्स विल बी इम्प्रूव्ड एंड देन यू आर एट अ बेटर प्लेस जहाँ पे कि आप पूरा मैनेज कर रहे हो ऊपर से। यस, That's a good insight, sir. And sir, now I want to understand कि now इतने लंबे पीरियड में obviously you have mentioned 2-3 times about upskilling कि आपने इस चीज पे बहुत ध्यान दिया है अपनी तरफ से, and even कुछ ना कुछ कोर्सेज बीच बीच में करते गए।
तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मिड लेवल करियर में जनरली स्टार्टिंग में तो वी नो कि हाँ हम ये कर लेंगे इसलिए हम इसमें आ जाएंगे, लेकिन मिड लेवल करियर में किस तरह से अपनी अपस्किलिंग करें जो कि एक्चुअली वो करियर पाथ बनाने में हेल्प कर पाए, बिकॉज एवरीबडी गेट स्टक कि वेदर हम ये कोर्स करें कि नहीं। आज के टाइम पे इतने कोर्स लाइक हैवी प्राइस के भी हो गए कि पीपल थिंक अबाउट इट 10 टाइम्स कि उस चीज को करना चाहिए कि नहीं, बट हाउ मच दैट इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग द स्किल। सर और एक फॉलो अप सेम हाँ। क्वेश्चन है कि Sure. बिकॉज आई थिंक पहले के जमाने में इतने जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज हो गए ये इतना ट्रेंड में नहीं था, तो देन Yes. गोइंग फॉर अ मेन स्ट्रीम लाइक एमबीए एंड दीज एग्जीक्यूटिव कोर्सेज वाज अ थिंग, बट कंसिडरिंग सेम विद द प्राची कि आज के जमाने में क्या करना चाहिए, इज इट ओके टू डू स्मॉल बाइट्स ऑफ कोर्सेज या यू शुड ऑप्ट फॉर एमबीए, मतलब जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। पहले तो ऑन लाइटर नोट आई थिंक हम पहले के जमाने में थोड़ा इजी था ज्यादा थे ही नहीं तो फिर कंफ्यूजन भी कम था, सो Yeah. वी गॉट अवे विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब बहुत चॉइसेस हैं, तो एज बोथ ऑफ यू हैव राइटली सेड काफी कंफ्यूजन रहता है। और मैं क्योंकि काफी करियर कोचिंग भी करता हूँ अपने काम में, मेंटरिंग भी करता हूँ, सो ये सब सवाल आते वहां भी हैं। तो मेरा एक कुछ पॉइंट्स हैं इसको लेकर के विच आई ऑल्सो एडवाइज माई क्लाइंट्स। एक जो प्राची आपने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, मिड करियर में आकर जो पहली गलती मुझे लगता है लोग करते हैं कि दे स्टॉप अपस्किलिंग। उनको लगता है कि हमें 8 साल 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब तो हम वी हैव अराइव्ड एंड बस अब ऊपर। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। पहली बात कि मिड करियर में आपको कभी भी अपस्किलिंग छोड़ना नहीं चाहिए। सेकेंड, बिकॉज वहीं से स्टैग्नेशन शुरू हो जाता है। अगर आपने अपस्किलिंग छोड़ दी तो फिर आप स्टैग्नेट कर जाओगे। नंबर 2, क्या करें, वेदर इट्स अनदर एमबीए और शॉर्ट कोर्स एंड ऑल, एक मुझे लगता है आपके गोल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना पीपल मैनेजमेंट स्किल्स बेटर करना है, बिकॉज एट मिड लेवल यू मस्ट बी मैनेजिंग अ टीम एंड यू विल, इफ यू गो टू अपर लेवल यू विल बी मैनेजिंग मोर ऑफ पीपल एंड टिपिकली फ्रॉम अ मिड टू सीनियर द बिगेस्ट शिफ्ट इज मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा आप उतना ज्यादा ग्रो करेंगे रादर देन टेक्निकल स्किल्स। तो मुझे लगता है मिड और सीनियर मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनको अपने पीपल स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोर्सेज करने चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, वो उनके अपने कैपेसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है। बट हाउ यू मैनेज टीम्स, हाउ यू मैनेज रिमोट फॉर एग्जाम्पल, एंड हाउ यू लीड, तो वो जरूरी है। टेक्निकल स्किल्स जरूरी हैं, अब तो बहुत जरूरी है बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है एंड टेक्नोलॉजी इज कमिंग एवरी, तो उस वक्त भी करना चाहिए। बड़े कोर्सेज और छोटे, मेरा जो यही फर्क है कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज होते हैं या ट्रेडिशनल एमबीए होते हैं या एग्जीक्यूटिव एमबीए होते हैं, वो अभी भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा मार्केट लिंक नहीं होते। तो मार्केट में जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है वो काफी सारे जो मे बी दूसरे जो स्मॉलर कोर्सेज होते हैं या वो है, तो वहां से, और वो आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, तो इट इज इजी राइट। शॉर्टर कोर्सेज आपको इनरोल करने में उतना नहीं, तो मुझे लगता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। बाकी इट्स योर ओन चॉइस आई वुड से। बट डू यू थिंक सर कि मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कोई करते हैं तो उनके पास एक डिग्री जैसे वो काउंट होता है, बट अगर वही सर्टिफिकेशन करें देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट। इफ आई टॉक अबाउट मी ओनली, मैंने ग्रोथ हैकिंग का एक कोर्स किया, बट देयर इज नो एज सच जो डिग्री फॉर मी, राइट? वो दिखाने में अच्छा है कि ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे वो कोर्स का वैल्यू भी नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर्स वो उतना वैल्यू भी नहीं दे रहे इस तरह से कोर्स को। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वैल्यू वर्सेस सर्टिफिकेशन वाली जो पॉइंट है आपने बोला है, तो अगेन अगर आपको पेपर सर्टिफिकेट की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो टू सम इंस्टीट्यूट एंड गेट इट। कई जॉब्स में वो लगती हैं, बट मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विच वर्क्स। आपने कहीं से कुछ सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन अगर आप, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हैकिंग, अगर आपने किसी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट से लिया है जहां कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है बट आपको थ्योरी का पढ़ा करके सर्टिफिकेट दे दिया गया है और आप जा करके वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, देन sooner or later you will be exposed on that. So I don't, at least the way I look at the world, I think tags वाले certificates जो होते हैं, those are going to be less and less important rather than, मतलब I'll give you an example. अगर मेरे पास दो लोग आते हैं, एक कहते हैं मैंने SEO किया है IIM बैंगलोर से, और एक कहता है कि मैंने SEO किया है मे बी ग्रोथ स्कूल से एंड प्रोजेक्ट किए हैं, तो मैं शायद ग्रोथ स्कूल वाले को लूंगा because I would believe that that person has actually done some projects and has actually implemented that.
बिकॉज मुझे लगता है स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हैं. कुछ ट्रेडिशनल कंपनियां अभी भी हैं, बट आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन हु यू आर अप्लाइंग एंड वेयर यू आर. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली कौन सी चीज को प्रेफर किया जाएगा, बिकॉज स्टिल पीपल आर बिहाइंड कि आईआईटी आईएम का टैग होना चाहिए, बट अल्टीमेटली उसमें कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है. लाइक व्हाट आई सी कि हाँ लास्ट के 2 वीक्स में मतलब बेसिकली रिकॉर्डिंग दिखा दिया जाता है, बट अल्टीमेटली जो पढ़ाई होनी चाहिए या मतलब जो कम्युनिटी बनाकर एक असेसमेंट देना चाहिए कि जो चीज एक्चुअली आप प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हो वो चीज नहीं हो रहा है. So that is something which is missing in that course, but ultimately फिर से एक और क्वेश्चन है इसी के ऊपर सर कि जब इंटरव्यू प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं कोई, तो उसमें काफी सारी जगह पे रहता है कि आपके पास लेट्स से कोई सर्टिफिकेशन होना चाहिए, पीएमपी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये सर्टिफिकेशन होता है. तो अब जब वो पर्सन के पास नहीं है तो उस चीज को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, दैट इज अनदर चैलेंज फॉर द मिड लेवल करियर. ये सही है. अगेन आई विल लुक एट इट कि अगर कुछ ऐसी जॉब, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपने एग्जांपल लिया, एंड आई हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट एरिया, सो आई कैन टेल यू फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. पीएमपी है फॉर एग्जांपल, तो आई नो, मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनके पास पीएमपी सर्टिफिकेट है लेकिन उनको कुछ नहीं आता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर. एंड देयर आर मेनी पीपल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं बट उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं. सर्टिफिकेट कैन हेल्प यू एंटर, यस, बट अगर आप एक बार एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद कंपनी में ग्रोथ के लिए आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, एंड देयर सर्टिफिकेट से ज्यादा आपका एक्चुअल काम मैटर करता है. सो यू हैव टू सी वेयर यू आर स्टक. इफ यू आर स्टक एट द एंट्री पॉइंट, मे बी गेटिंग अ गुड टैग सर्टिफिकेट विल हेल्प, बट वो बस एंट्री तक ही हेल्प करेगा आपको. एंट्री के आगे अगर आपको ग्रो करना है तो लोग आपका काम देखेंगे ना, कि आप एज फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपके टाइम स्कोप कॉस्ट में आपका प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है, आपके प्रोजेक्ट्स में कितना ओवररन है, नहीं है, और आपके पास 4 सर्टिफिकेट हैं और आपका प्रोजेक्ट हमेशा डिले होता रहता है, तो हु इज गोइंग टू प्रमोट यू? नोबडी इज गोइंग टू प्रमोट यू. सो दैट आई थिंक इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. वेरी ट्रू. काफी इंटेंस डिस्कशन हो गया. आई थिंक थोड़ा सा गोवा के बारे में बात करते हैं. गोवा क्या चिल करते हैं कि सर आपने मैनेजमेंट लाइक एमबीए किया है, राइट? सर वर्चुअल एमबीए और आपने या फिर जाके फुल टाइम जाकर किया पूरा 2 साल. देन तो फिर आई थिंक आपने गोवा आपने अच्छा खासा एक्सप्लोर भी किया होगा, राइट? सो कैसा लगा आपको गोवा इन जनरल, और देन आल्सो अबाउट एमबीए की नेटवर्किंग वगैरह जो हम बोलते हैं कि राइट एमबीए में बहुत सारा नेटवर्किंग होता है. सो एनी इनसाइट्स अबाउट दैट? I think one of the best decisions of my life was to do an MBA from Goa. Interesting trivia ये है कि मेरे पास 2-3 और options थे. I had an option in Delhi, I had an option in another city also. But I chose Goa because Goa could be as different from Bihar as Goa is. Yeah. So I definitely wanted to go to a place which is very different than where I was born and brought up and all that. I got to know. आई थिंक हमारे बैच में करीब पूरे इंडिया से लोग आए थे और 100 पीपल वर देयर. सो मेनी डाइवर्स बैकग्राउंड, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो बहुत अच्छा नेटवर्क रहा, बहुत. आज भी हम सब कनेक्टेड हैं. आई थिंक आई लर्नड अ लॉट इन द कॉलेज. कोर्स पढ़ाई से के साथ साथ जो आई थिंक जो आपने पॉइंट बोला, एमबीए आई बिलीव इज, एंड दिस इज हाउ आई थिंक एट एमबीए, एमबीए इज लेस ऑफ अ कोर्स. It is more about interaction, engagement, and how you build your networks and how you learn about life beyond the books. हम कॉलेज में बुक्स पढ़ते हैं, बट एमबीए इज मोर अबाउट दैट. सो वो बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपोजर. आई अंडरस्टूड कि दुनिया बहुत बड़ी है, भारत बहुत बड़ा है, एंड देयर आर मेनी स्मार्ट पीपल आउट देयर, एंड हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स. तो ये सब मेरी लर्निंग वहीं हुई, एंड दैट आई थिंक प्रिपेयर्ड ग्राउंड फॉर मी टू रियली स्टार्ट माई कॉर्पोरेट जर्नी. अदरवाइज बिफोर दैट आई वॉज फ्रॉम अ टिपिकल एरिया, एंड बहुत ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था वर्ल्ड के बारे में. So ये आपने मिड लेवल पे किया है, राइट? कि कुछ साल आपने काम किया था, लाइक नहीं, मैंने शुरू में ही किया. मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया और एमबीए किया और उसके बाद अपनी जॉब शुरू की. ओके, ग्रेट. सो देन डू यू थिंक कि थोड़ा सा जब सीनियोरिटी लेवल पे जाते हैं तो इस चीजों का थोड़ा सा मतलब एडवांटेज मिलता है एमबीए का, कि आई डोंट नो बट आई फील कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों के साथ डील करने का, बिकॉज एक डिग्री भी होता है और शायद थोड़ा सा लोगों अच्छे लोगों को यू हैव नेटवर्क एज वेल, सो कुछ अगर नॉलेज शेयरिंग भी अच्छी खासी हो जाती है. यस, आई थिंक एक जो बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है लोग थोड़ा मिस कर जाते हैं एमबीए में, लाइक टू हाईलाइट दैट. इफ यू डू अ एमबीए एंड देन डू अ जॉब, या एमबीए करके अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो एक बड़ा एडवांटेज, एमबीए गिव्स यू द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ अ बिजनेस.
अगर आप इंजीनियर हैं, ओनली अ बीटेक, then your vision is very technical because it's a technical education after all, right? So Right. आप हर चीज को टेक्नोलॉजी के नजर से देखते हैं एंड टेक साइड से देखते हैं, बट आप एक एमबीए के साथ अगर आप एक मिडिल लेवल पर आते हैं तो आप एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल जाता है. यू डोंट जस्ट लुक एट थिंग्स इन आइसोलेशन, और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एट द मिड एंड सीनियर लेवल. शुरू में तो नहीं, बट बाद में. और दूसरी चीज पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जो आपको सिखाई जाती है एमबीए में, जो एक टिपिकल टेक्निकल कोर्स में नहीं सिखाई जाती, तो वहां से भी बेटर होता है. तो आई स्ट्रांगली एडवाइज आप एमबीए करके जाए, या अगर आप कुछ दिन टेक करके जॉब कर रहे हैं तो उसके बाद मे बी पिकअप एन एमबीए, because that will after 4-5 years of work experience. So that's also a great idea, because I think that really helps somebody get to the middle and senior level. Right. That's an interesting insight, sir. So now, sir, अब वापस आते हैं प्रोफेशनल करियर में, because I have some more questions related to after the mid career. So let's say कि now upskilling हो गया and all, and you are more than like a senior person where you are handling the whole team. And what I understand from you, sir, कि आपने multiple industries पे काम किया है, right? कि हर इंडस्ट्री में आपने डिफरेंट तरीके से अपने स्किल्स को एनहांस किया. सो नाउ आई वांट टू नो कि जब आप इंडस्ट्री शिफ्ट कर रहे हो, सो कितना बड़ा फेज होता है कि मतलब जो आपका स्किल आपने इस इंडस्ट्री पे अप्लाई किया, वेदर दैट पर्टिकुलर स्किल्स एग्जैक्टली यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन द अदर इंडस्ट्री ऑल्सो, या वहां पे भी आपको चैलेंज आता है, या वहां पे कुछ अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट होती है which will be more helpful to indulge in that particular industry? I think very good question, Prachi. So, Mera, just to give a context to the viewers over here, I've worked across 5 different industries, and I've worked in sales across these 5 different industries. जो नॉर्मली कॉमन नहीं है. आप अगर आप देखो तो लोग एफएमसीजी में होते हैं तो पूरा करियर एफएमसीजी में, टेक पर होते हैं तो पूरा करियर टेक में होते हैं, बिकॉज इट इज इजी. ऑब्वियसली अगर आप 4-5 साल एक इंडस्ट्री में होते हैं, आपको न्यूएंसेस पता चल जाते हैं उसके, इट इज इजी. बट मेरी सोच थोड़ी अलग है इसमें, और ये मैंने कॉन्शियस शिफ्ट किए थे. द वे आई हैड लुक्ड एट इट, कि अगर आप सेल्स में हैं, ये मेरा बिलीफ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स में हैं और अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे सेल्स पर्सन हैं, देन आइडियली यू शुड बी एबल टू सेल अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस इंडस्ट्रीज, बिकॉज ह्यूमन बींग्स तो वही हैं. एंड सेल्स इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट? एंड अल्टीमेटली सबको वैल्यू चाहिए, सबको अपना फायदा चाहिए. तो आप एक डब्बा बेच रहे हैं या कोई सोल्यूशन बेच रहे हैं, सर्टेन प्रिंसिपल्स आर कॉमन. So to answer your question, across industry shifts are not easy, but you never start from zero. ये मिसकंसेप्शन है कि अगर मैंने इंडस्ट्री शिफ्ट की तो मैं जीरो से शुरू करूंगा. इट इज नॉट लाइक दैट. लाइक आई हैव मेड शिफ्ट्स, तो मैंने हमेशा पिछली इंडस्ट्रीज की नॉलेज को लिया है और उसको बिल्ड किया है दूसरी इंडस्ट्री के अंदर, एंड ऑब्वियसली दूसरी इंडस्ट्री की नई नॉलेज को भी लिया है. सो द एबिलिटी शुड बी टू अनलर्न एंड लर्न. I think that's a key ability that people should have. और अब तो और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज तभी आप ग्रो कर सकते हैं. तो आसान नहीं है, बट इट इज ग्रेट फॉर ग्रोथ. एंड आई गिव यू अ कॉन्क्रीट एग्जांपल. मेरी लास्ट इंडस्ट्री जो मैंने काम किया था, दैट वाज एडटेक एंड सैस. उसके पहले मैंने कभी भी सैस प्रोडक्ट नहीं बेचा. मैंने कंसल्टिंग सर्विसेज और ये किया था. बट जब मैं सैस में आया तो ऑब्वियसली सैस की काफी सारी नई चीजें मुझे सीखनी पड़ी, विच वॉज लर्निंग फॉर मी. बट क्योंकि मैंने हाई टिकट कंसल्टिंग बेची हुई थी, तो मैंने सैस की जो कस्टमर सक्सेस को मैं मैनेज करता था सेल्स के साथ साथ, तो वहां मैंने वो प्रिंसिपल्स लगाए जो मैंने वहां से सीख कर मैं आया था, और वो बहुत सक्सेसफुल हुए यहाँ. क्योंकि तो फिर क्रॉस इंडस्ट्री नॉलेज आपको बहुत वैल्यूएबल बना भी देती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर यूजिंग योर नॉलेज. और अगर आप क्रॉस इंडस्ट्री नॉलेज को यूज करते हैं, यू बिकम अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इवन इन द कंसल्टिंग वर्ल्ड. So, sir, is there any meta skills what you can like suggest to our audience? Ki, okay, these are the meta skills which you should have when you are in sales. Yeah, I am sure there are a few, not just in sales, but I think if you're doing corporate transitions, career transitions, first I think meta skill, which I think आप कुछ भी कर रहे हो, not just sales, but if you really want to grow in your career, is the skill of understanding people. Understanding the psychology of people and knowing people, that's very, very critical across the board. Second, your relationship building skills, जैसे वैभव भी पहले बोल रहे थे, सबसे बड़ा की है. और
as you spend more and more time in your career, you will realize that people skills really differentiate, are the biggest differentiator. कल को एआई आ जाएगा, ऑलरेडी एआई डेवलपर आ गया है, वो कोड तो वही लिख देगा, लेकिन बात मैं कैसे करूंगा वो अभी भी हम ह्यूमन करेंगे, दिल से दिल का रिश्ता तो ह्यूमन ही बनाएंगे. So that relationship skills, understanding people, that skill, and basically solutioning skill, कि आप कैसे उसकी नीड को समझ करके, चाहे आप एक डब्बा बेच रहे हो, चाहे आप कंसल्टिंग बेच रहे हो, अल्टीमेटली नीड मैचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये अक्रॉस द बोर्ड स्किल्स हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक फोर्थ, फॉर सेल्स एंड फॉर करियर ग्रोथ, ability to handle failures and resilience is a very critical skill, because कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैंने 20 साल 25 साल के करियर में हमेशा सक्सेस देखी एंड कभी मैं फेल नहीं हुआ. ऐसा हो ही नहीं सकता है. आई कैन रियली से एवरी सिंगल इंडिविजुअल हु इज एट द टॉप लेवल हैज फेल्ड 1 year, multiple years, एंड द रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये कुछ मेटा स्किल्स हैं. अगर आप ये स्किल्स आपके अंदर हैं, तो आई कैन सॉर्ट ऑफ राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर एंड गिव दैट everybody will grow. You will grow. These are some amazing skills. I have just not noted it down. Definitely. So guys, this is a part one conclusion here, because we have another part now and we will be talking, हम उसके अंदर जानेंगे कि जो आप सर को जानते हो मेजरली ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग, उनका मिड एज ट्रांजिशन इनटू फ्रीलांसिंग, वो उन्होंने कैसे किया, सब बारे में. So let's conclude this part. I hope you enjoyed this one part. Stay tuned. Watch our second part. See you in that part. Thank you.